ایک ایسے نوجوان زندگی جو ہے ہنسی خوشی بسر کر رہا تھا، اس کی جان لے لی کچھ ڈاکو نے۔ جلدی آئے ہماری مدد کریں، کوئی نہیں ہماری مدد کے لیے آیا۔ عباسی جی، عباسی جی، عباسی جی، یہ میں نے کہا وہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں بولے، وہ ہلے بھی نہیں۔ ہم ساری زندگی ڈھونڈتے ہیں، ہم ساری زندگی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، جان سے نہیں مارتے۔ اب ہمیں انصاف چاہیے۔ پولیس والوں کی طرف سے آتے ہیں، انہوں نے پہلے ویڈیو بنائی، پہلے تصویریں بنائی ہیں، میں انہیں ترلے اور واسطے ڈال لی ہوں، میرے شوہر کو پہلے اسپتال لے کے جاؤ، اس سے جلد اسپتال لے کے جاتے، تو کاش وہ میرے پاس ہوتے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقے بھارا کوہ میں۔ ناظرین، 14 اگست والے دن، جس دن آپ آزادی کا جشن منا رہے تھے، اس سے ایک رات قبل یعنی 13 اگست کی رات کو ایک ایسا افسوسناک اور دردناک واقعہ اس علاقے میں پیش آیا جس کو سن کر یقینی طور پر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 36 سال ہے، تنظیم احمد عباسی اس کا نام ہے، وہ ایک اچھے ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پر ملازمت کر رہا تھا۔ گھر سے وہ اپنے بچوں کے لیے جو رنگ برنگے 14 اگست سے ریلیونٹ جو کپڑے ہیں وہ لینے کے لیے نکلا اور کچھ میڈیسن کی اس کو ضرورت پیش آئی۔ اپنی وائف کے ساتھ وہ اس گھر سے نکلا اور واپسی پر اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک جو واقعہ رونما ہوا۔ ان کی زوجہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس وقت جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا وہ ان کے ساتھ تھی۔ ہم جانیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک ایسے نوجوان کی جو ہنسی بسی زندگی جو ہے ہنسی خوشی بسر کر رہا تھا، اس کی جان لے لی کچھ ڈاکو نے جو رابری کی نیت سے آئے تھے اور کچھ پیسوں کی جو ہے ہوس نے، کچھ پیسوں کی لالچ نے اس نوجوان کے ہنستے بستے گھر کو جو ہے وہ اجاڑ دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی وائف سے پہلے بات کریں اور ان سے جان سکیں کہ کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہنا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا، وہ کون لوگ تھے، آپ کو کچھ معلوم ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم کچھ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ ہم تو بالکل ہنسی خوشی جیسے ایک نارمل ہسبینڈ اینڈ وائف جاتے ہیں 14 اگست کی تیاری کے لیے، بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی، اپنے لیے لینی تھی اور میڈیسن ہم نے لینی تھی۔ اس گھر سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں، بس ڈاکٹر طارق جو بلال مارکیٹ جو ہے بلال آرکٹ کے پاس، ہم وہاں پہ رکھے ہیں، وہاں پہ میڈیکل سٹور بھی بند تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا ہے کہ واپس چلیں، سٹور بند ہے، ہم پھر چلیں، رہ جائیں کچھ چیزیں تو چھوڑیں، رہنے دیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ خیر انہوں نے مجھے بولا کہ چلیں، سٹول وہ چھوٹے لگے ہیں، بیٹے کی 14 اگست کی شرٹیں لینی ہیں تو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے تو وہ کہتے ہیں ڈیوارسن کھلا ہوگا۔ ڈیوارسن ہے کہ شارٹ کٹ ایک رستہ جاتا ہے پیچھے سے، شارٹ کٹ رستہ جاتا ہے، ہم اس رستے سے نا آگے بڑھے ہیں۔ آگے جیسے ہی ہم بڑھے ہیں، ہمارے سامنے سے جو نا ایک موٹر سائیکل سوار آیا ہے، اس نے ہمارے آگے موٹر سائیکل روکی ہے۔ ایک ہی موٹر سائیکل پہ بندہ موجود تھا، اس نے موٹر سائیکل روکتے ہی پہلے ہمیں کہا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہمارے ہاتھ دیکھیں خالی ہیں۔ اس نے ایک دم سے نا میرے ہسبینڈ کی جیب کی طرف ہاتھ ڈالا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ کی جیب کی طرف ہاتھ ڈالا ہے تو میرے ہسبینڈ نے نا اپنا ہاتھ بڑھا کے بہادری کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے۔ اس کے ہاتھ بازو پکڑ کے نا تو ایک دم سے کھینچا ہے، وہ موٹر سائیکل سوار گر گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار زور سے کھینچنے کے اس کی موٹر سائیکل نیچے گر گئی ہے۔ پھر وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ان دونوں میں سے کسی کا دھکا لگا ہے، میں نیچے گر گئی ہوں تو میں روڈ کی طرف واپس بھاگی ہوں، جس راستے سے ہم آئے ہیں روڈ کی طرف میں واپس بھاگی ہوں، کیونکہ سٹال کھلے ہوئے تھے، شاپس کچھ کھلی ہوئی تھیں، تو میں نے ان سے جا کے مدد مانگی ہے کہ جلدی آئیں۔ لوگ اتنے سخت دل
कोई भी मेरे पीछे नहीं भागा। मैंने मदद के लिए लाई हूँ, जल्दी आए हमारी मदद करें। कोई नहीं हमारी मदद के लिए आया। मैं वापस, मुझसे उस वक्त कोई चल ही नहीं रहा मेरे साथ, कोई किसी को कह रहा, कोई किसी को कह रहा। मैं वापस अपने शोहर की तरफ भाग गई। जब मैं अपने शोहर की तरफ वापस भाग गई हूँ तो वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करते करते अचानक से उस मोटरसाइकिल सवार ने मेरे हस्बैंड को धक्का दिया है। उनको धक्का लगा है, एकदम से उनको धक्का लगा है। तो धक्का लगा है तो वो मोटरसाइकिल सवार भागने की उसने कोशिश की है। तो मेरे हस्बैंड ने आगे से उनको बोला, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो उस जो वाक़या के दौरान एकदम से मेरे हस्बैंड के सर पे कोई चीज़ लगी है, डच की आवाज़ आई है। इतने ज़ोर से डच की आवाज़ मैंने महसूस की है कि मेरे हस्बैंड नीचे गिर गए थे। उस आवाज़ के बाद भी आपके पास कोई मदद के लिए नहीं आया? उस आवाज़ के बाद भी मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। और मेरे जब हस्बैंड नीचे गिर गए हैं तो मैंने उन्हें, वो उल्टे तरीके से गिरे हैं, उल्टी की तरफ, तो मैंने उनको हाथों से लाया। मैंने कहा, अब्बासी जी, अब्बासी जी, अब्बासी जी। ये मैंने कहा, वो कुछ भी नहीं बोले, वो हिले भी नहीं। मैं वापस रोड की तरफ भागी हूँ, लोगों से मैंने मदद की है। आवाज़ पता नहीं मेरी तो निकल ही नहीं रही थी। यहाँ पे पास ही एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे इतने सारे आगे लोग भी खड़े हुए, दुकानदार खुद भी खड़ा हुआ था, टैक्सियाँ भी खड़ी हुई थी, उनके साथ मुझे बहुत से लोग भी नज़र आ रहे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़े, उनके वास्ते डाले, आ जाए मेरे शोहर को देखें, आए जल्दी आए मेरे शोहर को देखें, आए जल्दी मदद करे। कोई नहीं आया। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये बच्चा इसकी उम्र क्या है? अभी ये 13 अगस्त को 1 महीने का हुआ है, 1 महीने का भी मेरा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रोहान है। अच्छा, रोहान है। आपको इस वक्त इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के लोग और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो भी देख रहे होंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगी उन जालिमों के हवाले से? मुतालबा ये है ना, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा वाक़या होता है तो कार्रवाइयों से पहले उसकी जान बचाएं, उसकी जान बचाएं, उसका ट्रीटमेंट उसे दें। वो सड़क पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, इंसानियत नहीं रही। कोई शोहर नहीं है किसी का, कोई भाई नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं होता। सिर्फ रिश्ते ही ज़रूरी नहीं होते, इंसानियत भी तो है। अल्लाह ताला ने पहले हमें इंसान बना के भेजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी पुलिस वालों की तरफ से कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानती कितना टाइम है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो घंटों के बाद आते ही उन्होंने पहले वीडियो बनाई, पहले तस्वीरें बनाई। इंसानियत कहने आता है पहले उसे ट्रीटमेंट दो, एम्बुलेंस मंगवाओ, 1122 मंगवाओ, उसे ऑक्सीजन लगाओ, उसकी सांस चल रही। मेरे हाथ खूनों के साथ लथपथ है। मैं उन्हें तरले और वास्ते डाल रही हूँ, मेरे शोहर को पहले अस्पताल लेके जाओ। कार्रवाइयाँ अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं, कार्रवाइयाँ तो फिर भी हो रही हैं, बयान तो मेरे फिर भी लिए जा रहे हैं, तो मेरे शोहर तो नहीं है ना इस दुनिया में। अगर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के वो पहले उसका ट्रीटमेंट करते, उससे जल्दी से जल्द अस्पताल लेके जाते, तो काश वो मेरे पास होते। मेरी बहन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मंजिलें आसान फरमाए और आपको सब्र जमील भी अता फरमाए। जी नाज़रीन, इस वक्त तनवीर अहमद अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे इस हवाले से। तनवीर साहब, हम सबसे पहले तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। एक जवान की मौत है, तो आप हमें ये बताइएगा कि इस सारे वाक़े को पुलिस से एहलकार किस नज़र से देख रहे हैं? आपको उन्होंने कुछ बताया होगा। और दूसरा, कोई आप लोगों की किसी के साथ दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं, हमारी किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ना किसी के साथ लेन देन का तनाज़ा था, ना कोई और किसी किस्म की दुश्मनी थी। पुलिस एहलकार अभी तक तो हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इनके कातलों को गिरफ़्तार करेंगे। हमारा जवान भाई इस दुनिया से गया है। मेरी इंतज़ामिया से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और तमाम हाई कमांड से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे भाई के कातिल को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। मेरा भाई बहुत शरीफ
बहुत ही शरीफ इंसान था, उससे किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो अपनी मेहनत करता था, अपनी मजदूरी करता था, सवेरे उठ के अपनी मजदूरी पे चला जाता, शाम को कैश का काम करता था, डालडा कंपनी में काम करता था, एक एक दुकान पे फिर के अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के मेरा भाई लाता था हर चीज़। अब मेरे बच्चे भाई के 7 साल के कम एज के 3 बच्चे रह गए हैं, बड़ी बेटी उसकी 7 साल की है, छोटा बच्चा उससे 5 साल का, उससे छोटा बच्चा 1 माह का, जिसने आंखें खोल के भी अपने भाई को नहीं देखा है। हमारा भाई इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, हंसी खुशी। मेरा भाई 14 अगस्त की तैयारी कर रहा था मैं बच्चों के कपड़े लेके आता हूँ, कल जाके मैं मरी माल रोड पे जाके 14 अगस्त मनाऊंगा। खुशी खुशी मेरा भाई घर से निकला था, खुशी खुशी चंद पैसों की खातिर, किसी की क्या दुश्मनी थी, परस ले जाता, मेरे भाई को ले जाता। हम सारी ज़िंदगी ढूंढते हैं, हम सारी ज़िंदगी ढूंढते हैं कि हमारा भाई जिंदा है, जान से नहीं मारते। अब हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान साहब, आप कहते थे मैं गरीब से इंसाफ करूँगा, मैं गरीबों से इंसाफ करूँगा, हमारा बोलने वाला कोई नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। आपके भी 2 बेटे हैं, आपकी बेटों की उम्र का था मेरा भाई, आप इंसाफ करें ना। बस करें, ये वाली बात आपके बेटे के साथ होती तो आप कुछ नहीं करते। आर्मी चीफ साहब, अगर ये कत्ल इस तरह आपका बेटा हो जाता तो आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, उसको अपना बेटा समझ के बोले ना। आप इंसाफ करें गरीब के साथ, हमें भी पता चले हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हमें वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से बहुत ज़्यादा इंसाफ की उम्मीद है, हम उम्मीद रखेंगे। अम्मा जी दसो अपने पुत्र दे बारे च। अपने पुत्र, मारे पुत्र इंसाफ, मारा बेअनक पुत्र किएगा, मारा बेअनक ते बेकसूर के राता मारे ने इंसाफ दो, इंसाफ। इमरान खान की आप इंसाफ दे, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जी नाज़रीन, ये पूरा वाक़या यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाला है। ये एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र 14 अगस्त वाले दिन 1 माह हुई, उसके ऊपर से जो एक बाप का साया है वो उठ गया, वो यतीम हो गया। और पूरे इस वाक़े के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी बहन ने जो चीज़ यहाँ पर बताई कि पूरा जो सिनेरियो है इस वक्त में और इस पूरे लम्हे में कोई भी शख्स उनकी मदद के लिए नहीं आया। अगर कोई भी शख्स उनकी मदद के लिए आ जाता तो शायद आज वो नौजवान भी हमारे दरमियान मौजूद होता। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। और हम भी इनके तवस्सुत से मुतालबा करना चाहते हैं इंतज़ामिया से और ख़ास तौर पे पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस से, कि वो इनके जो मुलज़मान हैं उनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करे और उसको सज़ा दी जाए और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।